बाबर बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाए थे। वो अपने बेटे हुमायूं से बहुत प्यार करते थे। एक बार हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। परेशान बाबर ने अपने दरबारियों से सलाह ली। गुलबदन लिखती है, एक अमीर मीर अब्दुल बाका ने उनसे कहा कि जब हकीमों के सारे उपाय नाकाम हो जाते हैं तो मरीज की सबसे कीमती चीज दान देकर खुदा से उसकी सेहत की दुआ की जाती है। बाबर का जवाब था, हुमायूं की सबसे कीमती चीज मैं खुद हूं, मैं उसके लिए अपनी कुर्बानी दूंगा। इसके बाद बाबर ने हुमायूं की पलंग का 3 बार चक्कर लगाया और खुदा से दुआ मांगी, अगर जान का बदला जान हो सकता है तो मेरी जिंदगी हुमायूं को लग जाए। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ 1539 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਕਨੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ 1540 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਖਤ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਆਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਮਾਯੂੰ, ਜਿਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਾਮਰਾਨ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ। दोस्तों, हमीदा बानो बेगम मुग़ल तारीख की एक काफ़ी ताकतवर खातून गुजरी हैं। वो हुमायूं की अहलिया और मुग़ल बादशाह अकबर की वालिदा थीं। उन्होंने ही हुमायूं की वफ़ात के बाद उनके मकबरे की तामीर करवाई थी। चौसा की जंग में शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं को 15 बरस जिला वतनी में गुजारने पड़े थे। इसी दौरान हुमायूं ने अपने छोटे भाई हिंदाल के रूहानी उस्ताद फारस के निवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की बेटी हमीदा बेगम से निकाह कर लिया था। आगे चलकर हमीदा बानो की कोख से ही हिंदुस्तानी तारीख में अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ने वाले शहंशाह अकबर की पैदाइश हुई थी। लड़ाई जीतने के लिए होती है हुजूर। उसे बादशाह समझते हैं। हमला युद्ध करने के लिए हमला भी कोने Most underrated historical figures that you may don't know about. Nur Jahan was born in Agra, India, in 1577 AD. She was the daughter of a Persian nobleman. In 1611 AD, Nur Jahan married Jahangir, the Mughal emperor. She quickly became his most trusted advisor and confidant. Nur Jahan was a powerful and influential figure in her own right.
She issued coins in her own name, and she commanded her own army. She was also a patron of the arts and learning, and she commissioned many beautiful buildings and works of art. Nur Jahan's reign was a period of great prosperity and cultural flourishing for the Mughal Empire. She was a wise and benevolent ruler, and she is considered to be one of the greatest empresses in Mughal history. Mumtaz was Shah Jahan's third and favorite wife, and their love story is legendary. It is generally believed that she was a beautiful and devoted wife, who was content to have lots of children with her husband. She died giving birth to their 14th child, Shah Jahan, in 1631 in memory of his third but the most favorite wife. In fact, a soulmate, Mumtaz Mahal, a Muslim Persian princess. Taj Mahal was built by the 5th Mughal emperor, Shah Jahan, in 1631 in memory of his third but the most favorite wife. दिलरास बानो बेगम, जिन्हें बीबी के नाम से जाना जाता है, यह सम्राट औरंगजेब की पहली और मुख्य पत्नी थी। इनकी डेथ के बाद इन्हें टाइटल दिया गया राबिया उद दौरानी, मतलब राबिया ऑफ द एज। यह टाइटल एक इराकी कुलीन महिला राबिया बसरी के नाम पर है, जो अपने परोपकार के लिए फेमस थी। औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है, जो काफ़ी मिलता जुलता है ताजमहल से, इसे इनके पति औरंगजेब ने इनकी डेथ के बाद बनवाया था। दिलरास बानो बेगम सफाविद डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। इनके पिता का नाम मिर्जा वादी उज जमान सफवी था, जो इस्माइल के वंशज थे। इनकी शादी सन 1637 में राजकुमार औरंगजेब से हुई। इतिहास कहता है कि औरंगजेब और दिलरास बानो की शादी उस समय की सबसे आश्चर्यजनक और असाधारण शादियों में से एक थी। अपने पांचवें बच्चे मोहम्मद अकबर को जन्म देने के 1 महीने बाद दिलरास बानो बेगम की डेथ हो गई 1657 में। 1660 में यानी निधन के 3 साल बाद औरंगजेब ने ताजमहल की तर्ज पर अपनी पत्नी के लिए एक मकबरा बनाने का फैसला किया, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। बीबी का मकबरा की कल्पना ताजमहल के मुख्य वास्तुकार और मास्टरमाइंड उस्ताद अहमद लाहौरी के 3 पुत्रों में से एक अता उल्लाह रशीदी ने की थी, जिन्हें शाहजहां द्वारा नादिर उल असर की टाइटल भी दिया गया था। तो जिस प्रकार शाहजहां ने अपनी बीबी के लिए ताजमहल बनाया था, उसी प्रकार औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी को अमर करने के लिए बीबी का मकबरा बनाया था। ये औरंगाबाद में सिचुएटेड है और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ताजमहल की कॉपी है। तो बीबी का मकबरा बनाने में अता उल्लाह रशीदी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।